Hello students, in today's lecture we will continue with the problems on chi-square distribution. We will try to check independence of given attributes. Means if two attributes are given to us, we will try to check are they related. Is there any association between that two attributes? For example, will the tall fathers have tall sons? या फिर फादर की आईज का कलर डार्क है तो सन की आई का कलर भी डार्क होगा, या इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर दो एट्रीब्यूट्स है, एक है एज और दूसरा है हमारा चॉइस. सो आर दे रिलेटेड? हमारी कोई भी चॉइस एज पर डिपेंड करती है या नहीं? So just see the question. The following table gives the result of opinion poll for the three vehicles A, B and C. Test whether the age and choice of the vehicles are independent at 5% level of significance using chi-square test. So where to check independence of these two attributes here? Age and choice of vehicle. Are they related? Is there any relation between these two? So for such type of problems, null hypothesis will be always that there is no association between the given attributes or there is no relation between the given two attributes. तो यहाँ पर attributes given है आपको age and choice of vehicle. So we will say that there is no association between them. That will be the null hypothesis. And of course, alternate hypothesis will be complement to this. Means there is an association. So age and choice of vehicle is related. Now testing the given statistics. So firstly see the given data. These are the observed frequencies. We are having here three columns for the choice of vehicles. We are having three types of vehicles here, A, B and C, and three rows are given for different age groups. So we are having here three rows in the table and three columns. We will now be counting the row of total as well as column of total. So total 9 values are given here that are the observed frequencies. अब हमको find करना है expected frequency. Rest of the problem exactly same है. So these are the observed frequencies. So अगर values table के form में given है तो expected frequency हम कैसे find करेंगे? This table is also called as contingency table. Okay. So how we will be finding the expected frequency? Say for the first cell, ये 25 observed frequency है. इसके लिए expected frequency कैसे find करेंगे? So what we need to do? Here formula will be different. अभी तक हमने क्या फॉर्मूला लिया प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉब्लम सॉल्व किए, कैपिटल N इंटू P. तो वहां पर N क्या था? इफ स्मॉल n ट्रायल्स आर रिपीटिंग कैपिटल N टाइम्स, या N था सिंपली समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज और P था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. यहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे हम? इट विल बी A इंटू B अपॉन कैपिटल N. So what will be A, B and N? तो आप जिस सेल के लिए फाइंड कर रहे हो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, A will be total in that row, so it is 100 here. B will be total in that column, it is again 100, and capital N will be the grand total, so it is 300. So here answer for expected frequency of first cell will be 100 into 100 means 10,000 upon 300. That will be the answer for E for the first cell. So that is 33.33. So I am writing it as 33. We can round off it to the nearest integer. Similarly second value हमको कैसे मिलेगा? आप multiply कीजिए total in that column को total in that row से. So again it is 100 into 100 here और उसको divide करना है हमको grand total means 300 से. So again 10,000 upon 300. So answer will be again 33.33. So आप देख सकते हो यहाँ पर total in row and column is same. So every time answer will be same for expected frequency 33.33. लेकिन आपकी जो भी रो है या कॉलम है उसका टोटल 100 आना चाहिए. तो आपको एक वैल्यू राउंड ऑफ करना होगा 34 पर और बाकी की दो वैल्यूज आप राउंड ऑफ करोगे 33 पर. देन ओनली टोटल विल बी 100. तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल गया. सपोज आपने उसको 34 लिख दिया. अब नेक्स्ट वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? टोटल इन दैट कॉलम इनटू टोटल इन दैट रो अपॉन 300. सो इट विल बी अगेन 33.33. आप सिंपली क्या कर सकते हो? 100 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए 67 को. यू विल गेट द आंसर फॉर दिस सेल विच इज अगेन 33. Similarly we can find remaining values. So I am writing the same table again now with all 9 expected frequencies. Okay. अब मेथड सेम है हमारा. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आप किसी भी पैटर्न में लिख लीजिए. रो फर्स्ट लिखिए या कॉलम फर्स्ट लिखिए. सेम पैटर्न में लिखिए आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेशन सेम है हमारा. इसका टोटल हो गया आपका रिक्वायर्ड chi-square. इट इज 10.92.
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन है 0.05, सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड व्हाट विल बी द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिया n-1, जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज थी उसमें से सब्सट्रैक्ट किया 1। यहां पे क्या है, रो -1 इंटू कॉलम -1, तो अगर वैल्यूज टेबल के फॉर्म में गिवन है तो रो -1 इंटू कॉलम -1। आई विल रिपीट अगेन, टोटल का रो और कॉलम काउंट नहीं करना है, तो हमारे पास थे 3 रोज एज के और 3 कॉलम्स थे चॉइस ऑफ व्हीकल्स के A B C, so 3 - 1 into 3 - 1 answer is 4. that are the degrees of freedom. You can easily identify the value of chi-square alpha from chi-square table. So calculated value is greater than the critical value, hence null hypothesis is rejected. What was the null hypothesis? There is no association between choice and age. So alternate hypothesis हो गया accepted, means choice of car and age are associated. Let us see one more question. A sample of 400 students of undergraduate and 400 students of postgraduate classes was taken to know their opinion about autonomous colleges. 290 of undergraduate and 310 of postgraduate student favor the autonomous status. Use chi-square test and test that the opinion regarding autonomous status of college is independent of the level of classes of students. So again a similar problem. Again we have to check independence of these two attributes, opinion and their level of class. So null hypothesis will be similar. There is no association between opinion of the students and their level of class. And similarly alternate hypothesis will be that there is an association. Now observed frequencies are not clearly given here, so we will try to identify it. आप क्या कीजिए, जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए। तो क्या वैल्यूज गिवन है, a sample of 400 students of undergraduate and 400 students of postgraduate. तो टोटल सैंपल है हमारा 800 स्टूडेंट्स का, जहां पर है 400 अंडरग्रेजुएट से और 400 स्टूडेंट्स है पोस्ट ग्रेजुएट से। अब उनका हम ओपिनियन ले रहे हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बारे में, तो आप 2 कॉलम्स या 2 रोज बना लीजिए, एक में अंडर ग्रेजुएट लिखिए, एक में पोस्ट ग्रेजुएट लिखिए। आप दूसरा वैल्यूज कहां से लोगे, ऑटोनोमस कॉलेजेस के बारे में इनका क्या ओपिनियन है, आर दे इन द फेवर और दे आर अपोजिंग इट, तो ये 2 कॉलम्स या 2 रोज मिल गया आपको, इन फेवर और इन द अपोजिशन। तो क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है, 290 ऑफ द अंडर ग्रेजुएट एंड 310 ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फेवर द ऑटोनोमस स्टेटस। सो सी व्हाट इज द गिवन डेटा। सपोज आपने रोज में लिखी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो कॉलम में लिख लिया वो ऑटोनोमस कॉलेज को फेवर कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में है। तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है दैट वी आर हैविंग 400 अंडर ग्रेजुएट एंड 400 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मींस टोटल इज 800। और फेवर की वैल्यूज गिवन है सिर्फ 290 स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट आर फेवरिंग द ऑटोनॉमस स्टेटस एंड 310 स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट आर फेवरिंग द ऑटोनॉमस स्टेटस। तो आप इनका टोटल ले लीजिए, इस कॉलम का टोटल हो गया 600। तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे टोटल कितना मिलना चाहिए, 200। तो आप ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, एक तो वही फॉर्मूला A इंटू बी अपॉन एन, तो टोटल इन द कॉलम इंटू टोटल इन द रो अपॉन ग्रैंड टोटल, या यहाँ पे सिंपली आप 400 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए 290 को, आपको आंसर मिल गया वहां पे 110। सिमिलरली सेकंड के लिए आप 400 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए 310 को, आपको आंसर मिल गया 90। तो ये होगी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। 4 वैल्यूज जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, दीज आर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। वी आर हैविंग ओनली 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, हम टोटल का रो या कॉलम काउंट नहीं कर रहे। तो अब फाइंड करना है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वो आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट सेल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करोगे, 600 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 800, सो आंसर विल बी 300। सिमिलरली इसके लिए कैसे फाइंड करना है, इट इज 200 इंटू 400 अपॉन 800, या आप सिंपली क्या कीजिए 400 में से 300 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट द आंसर हियर दैट इज 100। सेम ये वैल्यू कैसे मिलेगा, यहां पर 600 में से सब्सट्रैक्ट करना है 300, तो आंसर मिल गया आपको 300। सो वी कैन इजीली गेट ऑल द 4 वैल्यूज, दीज आर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब इनको लिख लीजिए आप O और E की वैल्यूज को किसी भी पैटर्न में, रो वाइज या कॉलम वाइज, दोनों के लिए सेम पैटर्न, एंड जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर, आंसर इज हियर 2.66। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सपोज सेट किया 5% पे, तो क्रिटिकल वैल्यू हो गया 3.84, क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है रो -1 इंटू कॉलम -1, तो ओनली 4 वैल्यूज आर गिवन, सो 2 - 1 इंटू 2 - 1 दैट इज 1। सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। मीन्स हियर देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द opinion and level of their class. Let us see one more question. Out of a sample of 120 persons in a village, 76 were administered a new drug for preventing influenza.
and out of them 24 persons were attacked by influenza. Out of those who were not administered the new drug, 12 persons were not affected by influenza. We have to use chi-square test to find whether the new drug is effective or not. So again a similar problem. यहाँ पर भी दो attributes given है, एक है drug और दूसरा है disease. So again null hypothesis will be that there is no association between these two attributes. Or yes, simply we can say that new drug is not effective. So alternate hypothesis will be that new drug is effective. Now second step is testing the given statistics. So we need to identify the observed frequencies first. See what is given in the question. We are having 120 persons. Out of that 76 को जो है ड्रग गिवन है और उसमें से 76 में से अल्दो उनको ड्रग गिवन है फिर भी 24 को इन्फ्लुएंजा हो गया है और बाकी के 120 में से 76 को ड्रग गिवन है. सो रिमेनिंग पर्सन्स आर नॉट गिवन दैट ड्रग. स्टिल 12 पर्सन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट डिजीज. सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई the observed frequencies here. See the given data. Total है 120. Out of that 76 persons are given the drug and remaining are not given the drug. So we can easily find this value just subtracting 76 from 120. अब 76 को ड्रग गिवन है फिर भी उसमें से 24 जो है अफेक्टेड है तो यहाँ पे आपको 24 मिल गया और जिनको ड्रग गिवन नहीं है उसमें से 12 आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिसीज. सो वी कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई द रिमेनिंग वैल्यूज. ये ब्लैंक स्पेसेस हम इजीली सकते हैं. हाउ वी कैन इजीली गेट दिस वैल्यू जस्ट सब्सट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम 76. Similarly, this value can be obtained by subtracting 76 from 120. And so on, we will get the remaining values. So these are the observed frequencies. Again, we are having two rows here for affected by the disease and not affected by the disease, and two columns here for given drug or drug not given to them. तो टोटल का रो और कॉलम हमको काउंट नहीं करना है. फिर से इस टेबल में दो रोज और दो कॉलम्स है. अब फाइंड करना है हमको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. सो एज बिफोर आपको इस वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो आप टेबल एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए. पहले टोटल लिख दीजिए, बाद में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आंसर लिखिए. अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, ये वैल्यू कैसे मिलेगा आपको. सो इट इज 76 इंटू 56 अपॉन 120. यू विल गेट दिस वैल्यू. और यहाँ पे एक वैल्यू मिल गया तो आप सब्सट्रैक्शन करके बाकी की वैल्यूज वेरी इजीली ऑब्टेन कर सकते हो. तो यहां पे आंसर मिल गया आपको 35. So 76 minus 35 will gives you 41. So you will get this answer also. Similarly, ये वैल्यू फिक्स है 56. So उसमें से सब्सट्रैक्ट किया आपने 35 तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल गया. So we can very easily obtain the expected frequency. अब नेक्स्ट हो गया बस chi स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है. तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आप लिख लीजिए. आपकी चारों वैल्यूज किसी भी पैटर्न रो वाइज और कॉलम वाइज सेम पैटर्न में लिखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ये वैल्यूज हमको कैलकुलेट करना है. दैट विल गिव्स यू द रिक्वायर्ड समेशन विच इज chi स्क्वायर. That is 17.43 here. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सपोज सेट किया फिर से 5% पे तो यहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है रो -1 इंटू कॉलम -1. इट इज 1. सो आपको क्रिटिकल वैल्यू मिल गया 3.84. नाउ सी द कैलकुलेटेड वैल्यू 17.43 एंड क्रिटिकल वैल्यू 3.84. सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू. सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. और नल हाइपोथेसिस क्या था हमारा, ड्रग वॉज नॉट इफेक्टिव. मीन्स अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. सो वी आर डन विद दिस टॉपिक. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मीन्स एनोवा. थैंक यू.